Good morning, children. I hope you all are fine. I am happy to connect with you all. Dear children, in the previous session, we have done many activities from your book and from your companion book. So, student, in this session, we are going to do another activities. This is your companion activity 7D. Okay? So, let me read the instruction for you. It says, look at the picture given below. What do you want to know about this scene? Write a few questions. One has been done for you. क्या है ये कि यहाँ आपको एक पिक्चर दी हुई है. अब ये सीन, आप इस सीन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो हम उसके लिए क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि भाई ये कौन है, ये क्या है. ओके, सो हमें इसके लिए अप्रोप्रिएट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हुए हमें यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, यानी राइट अ फ्यू क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे राइट करने हैं. सो वन हैज़ बिन डन फॉर यू. व्हाट यू कैन सी, there is a beautiful picture. There are some apartments or some building. There are some women. Okay, there is a parents with their child. Okay, there is a person with his dog. So you have to frame another question, okay, for this picture. So first question is who is the person with the dog. ओके, इसी तरह से आपको और क्वेश्चन भी इसके लिए बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द लेडी इन द बैल्कोनी डूइंग, यानी कि ये लेडी यहाँ पे क्या कर रही हैं. वेयर आर द गर्ल्स पेरेंट्स टेकिंग हर, कि ये जो हैं इस बच्ची के पेरेंट्स इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं. इसी तरह से आप अनदर क्वेश्चंस इसके लिए फ्रेम कर सकते हैं. ओके, व्हाट इज़ द डॉग डूइंग, विच प्लेस इज दिस. ओके, you can frame many questions by using interrogative pronoun. Now next activity on page number 53. This is your companion activity 7E. It says, fill in the blanks with pronouns that ask a question. What, which, who. Pronoun in column A. Draw lines to match the question in column A with their answer in column B. In column A, there are some question given, but which are incompleted. Column A में जो question है, कुछ question दिए हुए हैं, लेकिन ये क्या है, incomplete हैं. So you have to fill the blanks with appropriate pronouns. मीन्स what, which, who, इनका यूज़ करते हुए आपने अकॉर्डिंगली इन सेंटेंसेस को, इन क्वेश्चन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. देन यू हैव टू मैच दिस क्वेश्चन विद देयर रेस्पॉन्सेस गिवन इन कॉलम बी. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश. इन कॉलम ए, डैश इज़ योर नेम. सो जब हम किसी पर्सन से उसका नेम पूछते हैं तो कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, कौन से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, व्हाट का. इज़ द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड, डैश इज़ दैट गर्ल इन द फर्स्ट रो. सो इन द सेकेंड ऑप्शन, second question is dash is the correct option. So we want to more about option, मतलब कि हम ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे, what. third one is dash is that girl in the first row.
मीन्स यहाँ हम किसी पर्सन, गर्ल क्या है, एक पर्सन है, तो हम उस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं. सो वी कैन यूज who here. Who is that girl in the first row? And the fourth is dash of these books in yours. Which of these books is yours? Fifth is dash is the new school leader. यहाँ भी हम किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं. We know about the person. We want to know about the person. So, who is the new school leader? Okay. So, अब इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं? Who is the new school leader? It is राम्या. यहाँ पे ही पर्सन के बारे में बात हो रही है. थर्ड देखिए आप, Who is that girl in the first row? गर्ल के बारे में बात हो रही है, तो she is a new girl in class. फोर्थ इज विच ऑफ दीज बुक्स इज योर. इसी के सामने है इसका, द बिग बुक इज माइन, यानी बड़ी वाली बुक मेरी है. वॉट इज योर नेम? माई नेम इज सनी. एंड द सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन. द थर्ड ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन है. ओके. सो स्टूडेंट, now it's your turn to work on this activity. Open page number 52 and 53 and do these activity. Don't forget to write today's date and or are you doing in your notebook, so you can write today's date and don't forget to mention activity number and chapter number. Now page number 54. This is your companion activity 7 at page number 54. It says, choose the correct pronoun that asks a question from the given option. Write another question of your own using each pronoun that you have chosen. आपको यहाँ क्या करना है? There are some sentences given which is incompleted. Okay, यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, हमें उनको कंप्लीट करना है. उनके सामने दिए हुए ब्रैकेट में जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दिए हुए हैं और क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस उनमें से करेक्ट क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. देन यू नीड टू फ्रेम अनदर क्वेश्चन बाय यूजिंग दैट प्रोनाउन दैट यू हैव चूजन. आपको उन प्रोनाउन का यूज़ करते हुए अगेन न्यू सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं जो आपने इन ऑप्शंस में चूज़ किया है. Okay, so first one is dash is the name of the boy in the red shirt. हम यहाँ पे उस बॉय के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? क्या यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट? हु, वेयर या वॉट? वॉट इज द नेम ऑफ द बॉय इन द रेड शर्ट? ओके. Second is, and you need to frame another sentence, another question sentence by using this interrogative pronoun. Now the next is wants to play hide and seek. Who wants to play hide and seek? और another option क्या frame कर सकते? Another question आप क्या frame कर सकते हैं? Who is your best friend? Who is your friend? Who is playing with you? Okay. Now the third is, of this is your bag. Which of these is your bag? इनमें से कौन सा आपका बैग है? और आप अदर सेंटेंस, अदर क्वेश्चन क्या फ्रेम कर सकते हैं? Which of these colors did you like? इनमें से कौन सा कलर आपको पसंद है? ओके. और आप अपनी अकॉर्डिंग भी कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. नाउ द फोर्थ इज
इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, मीन्स हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। ओके, अनदर ऑप्शन, अनदर सेंटेंस क्या फ्रेम कर सकते हैं, हु इज कमिंग टू आवर हाउस टुडे, कौन हमारे घर पे आ रहा है, हु इज दिस, ये कौन है। ओके, नाउ द फिफ्थ इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, क्या आपका फेवरेट कलर क्या है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस, आप कौन सा सेंटेंस कौन सा फ्रेम कर सकते हैं, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, ओके, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, you can frame many question by question words. Okay, now page number 55. So student, you have done many activities to gain good confidence using the interrogative pronoun. Now we are going to do another activity. This is your project time activity 7G. Read the comic strip given below. Fill in the blanks with appropriate adjectives indicating ownerships and pronouns that ask a question. Ask suitable question for the given आंसर्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक कॉमिक बुक की स्टोरी दी गई है जो कि किंग मिडास और उसके कज़िन के बारे में। ओके, सो आपको यहाँ पर जो ब्लैंक्स हैं इनको अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव्स का, कौन से एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स इंडिकेटिंग ऑनरशिप एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हुए आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ओके, नाउ लेट मी रीड द सेंटेंसेस। ओके, मिडास एंड हिज कजिन रिकार्डो वर कैचिंग अप ऑन इवेंट इन देयर लाइव्स। दिस इज Marigold's garden. Last year she was very upset that dash roses had lost dash smell. So यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपको उस सेंटेंस को अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स इंडिकेटिंग ऑनरशिप का यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, उनको कंप्लीट करना है। सो अपसेट दैट हर रोजेज, यानी उसके, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मैरीगोल्ड की बात हो रही है और हमें यहाँ पे एडजेक्टिव्स का यूज़ करना है जो कि कौन से एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स इंडिकेटिंग ऑनरशिप का यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। हैड लॉस्ट देयर स्मेल, यू टर्न योर ओन डॉटर इनटू ए स्टैच्यू। तो ओके, यस बट आई गेव अप द गोल्डन टच आफ्टर दैट, यानी कि जो किंग मिडास है वो अपने कज़िन को इस बारे में पूरा बता रहा है। तो हमें इस स्टोरी को कंप्लीट करना है, जहाँ ब्लैंक्स हैं उनमें हमें इंडिकेटिंग एडजेक्टिव इंडिकेटिंग ऑनरशिप का यूज़ करना है, देन हमें क्वेश्चन आस्क करना है। ओके, आप जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे आप उन्हें उसमें अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ओके, सो मैरीगोल्ड एंड हर फ्रेंड्स एंटर द गार्डन टू प्ले। तब क्या होता है, मैरीगोल्ड और उसकी फ्रेंड गार्डन में आती हैं। देयर्स लवली डॉटर, तो किसकी डॉटर है वो, किंग मिडास की। तो ये किंग मिडास है तो क्या कहेगा वो जब अपनी डॉटर के, माई डॉटर। ओके, सो कज़न कहता है ऑफ द गर्ल इज मैरीगोल्ड, विच वन ऑफ द गर्ल्स इज मैरीगोल्ड। तो वो पूछता है कि यहाँ क्या है, वो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का। सो विच वन ऑफ द गर्ल्स इज मैरीगोल्ड। किंग मिडास पॉइंटेड टू हिज डॉटर, वो अपनी डॉटर की तरफ पॉइंटेड करता है। हु वॉज वियरिंग अ ब्लू ड्रेस, द वन इन ब्लू, वॉट फन दे हैव प्लेइंग विद देयर बॉल। जस्ट देन they heard a bell
Bell, its sound was loud and clear. Okay. Who rang the bell? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मीन्स हमें क्वेश्चन वर्ड से इसको कंप्लीट करना है. Midas smiled at his cousin. That tells us that our lunch is ready. Come along. Okay. Now students, try to do these activities. Okay. Don't forget to write today's date. Bye bye.